नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द एलिमेंटिक डिजीजेस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एस्केरियासिस। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर एस्केरियासिस? It is Ascariasis lumbricoides, or commonly it is called roundworm. Ascariasis हमने देखा ही होगा क्लास 11th में, एनिमल किंगडम में था। इधर इट इज कॉल्ड कॉमनली राउंडवर्म और Ascariasis lumbricoids। ठीक है, ये पॉजिटिव एजेंट हो गया। यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन में यहाँ पे जो एस्केरियासिस lumbricoids के एग्स होते हैं, they are going to be released with the feces of infected person, and those eggs will infect the soil further, and fruits and vegetables whatever are growing in that soil. So the contaminated vegetables and fruits are going to serve as mode of transmission or source of infection for amoebiasis। ठीक है, so mode of transmission में एग्स होते हैं वैसे तो, eggs of parasite from on the feces of infected person। ठीक है, इसके थ्रू ये ट्रांसमिट होती है। दूसरी चीज जो हमारा एस्केरियासिस lumbricoids होता है, इट इज अ पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन। दिस इज इंटेस्टाइनल पैरासाइट। अगेन आपको इंटेस्टाइन का पैरासाइट मिल गया, कौन? एस्केरियासिस lumbricoids। तो इंटेस्टाइन के हमें 3 पैरासाइट समझ में आए अभी तक। पहला तो टाइफाइड का था, सैल्मोनेला टाइफी। दूसरा हमने अभी भी पढ़ा था लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। और अगेन इंटेस्टाइनल पैरासाइट में मिल गया एस्केरियासिस। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे डिजीजेस के? इंटरनल ब्लीडिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यूजुअली, क्योंकि पैरासाइट उधर का ही है। इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, anemia, and blockage of intestinal passage। This is a unique feature, blockage of intestinal passage। इसके दो स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं जो पता होने चाहिए, इंटरनल ब्लीडिंग और दूसरा आपका ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, देन यू कैन इजीली फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ डिजीज वी आर टॉकिंग अबाउट। वी आर टॉकिंग अबाउट एस्केरियासिस। ठीक है, सो एस्केरियासिस में इतना ही है। पॉजिटिव एजेंट इसका एस्केरियासिस lumbricoid which is also commonly called roundworm। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में eggs of the parasite which are released along with the feces of infected person are going to contaminate the soil, fruits and vegetables, and so the contaminated fruits and vegetables will be a source of ascariasis disease। This is the intestinal parasite। So whatever the symptoms are, they are concerned with internal bleeding, muscular pain, anemia, and blockage of intestinal passage। That's all about ascariasis। जो next helmintic disease है, that is filariasis। फिलेरियसिस का पॉजिटिव एजेंट होता है फिलेरियल वर्म। What is the species name? Wucheria bancrofti or Wucheria malae। Either Wucheria bancrofti or Wucheria malae।
ब्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टाई और ब्यूचेरिया मलाई, दोनों में से कोई भी हो सकता है फॉर पॉजिटिव एजेंट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में यहाँ पर ट्विस्ट है, यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वाया बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स। बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स, कोई कंटेमिनेटेड फूड वगैरह नहीं है, डायरेक्टली ट्रांसमिशन हो रहा है थ्रू वेक्टर्स। ठीक है। और फिलेरियोसिस का यूनिक फीचर है दैट इट कॉजेज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन याद रखिएगा। Chronic inflammation of the organs in which your parasite survives. Chronic inflammation में chronic means for a long time and it builds along the lifetime of an individual. So it is a chronic inflammation, and yeah, it is a it is going to cause gross deformity, which is not a kind of curable disease. So there is chronic inflammation of organs in which the parasite lives. और जनरली वो ऑर्गन्स होते कौन कौन से हैं? lymph nodes of lower limbs। ठीक है, वहाँ पे the parasite is going to survive and it is going to cause a chronic inflammation. This is the reason why in your NCRT you can see the scrotum. Scrotum is kind of bulged out. It has swollen so much that it is swollen, and along with it the legs, the thighs, they are giantly swollen, just like elephant. So filariasis is also called elephantiasis. लिख देती हूँ, वैसे तो पता होगी आप लोगों को। Also called elephantiasis। ठीक है, लोअर लिम्स के इन्फ्लेमेशन को कॉज करता है हमारा फिलेरियसिस। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द इंडिविजुअल इट इज गोइंग टू डेवलप, द डिजीज डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम। और क्या होगा इसमें? फिलेरियसिस में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है ऑर्गन का लोअर लिम्स, lymph nodes पे। lifetime, during the lifetime it is going to develop and it is going to cause gross deformity which is not curable। gross deformity of lower limbs। ये होते हैं फिलेरियसिस के और एलिफेंटाइसिस के सिम्टम्स। कॉजेटिव एजेंट में फिलेरियल वर्म याद रखिएगा, ब्यूचेरिया बैनक्रप्टा है, ब्यूचेरिया मलाई। टॉकिंग अबाउट फंगल डिजीज। फंगल डिजीज में हमें केवल एक ही डिजीज दी हुई है विच इज रिंगवर्म। रिंगवर्म के कॉजेटिव एजेंट में सर्टेन ग्रुप ऑफ फंगाई आते हैं। सो इसके कॉजेटिव एजेंट्स में सर्टेन ग्रुप ऑफ फंगाई माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। ठीक है, ये कुछ फंगाई होते हैं जिनके ग्रुप, द नेम ऑफ दीज फंगाई
in this group are going to cause ringworm disease. Cause, oh sorry, mode of transmission में sharing the utensils, towels or combs of the infected person. Sharing towel, comb of infected person. As well as it is acquired from soil. दूसरी चीज, जो फंगाई होती है, इट्स ग्रोथ इज फेवरेबल इन मॉइस्चर एंड हीट. तो जब इसकी मतलब ऐसी कंडीशंस में, ह्यूमिड कंडीशंस में फंगाई का ग्रोथ फेवरेबल होता है. सो जनरली सॉइल की कंडीशन जब ऐसी होती है तो वहाँ पे इजीली इट इज गोइंग टू बी एक्वायर्ड. और इसीलिए हम बोलते हुए हैं कि इन द रेनी सीजन वेन एवर यू वेयर योर undergarments and all, so they should be properly ironed and dried so that fungus is not going to grow, because fungal growth in the groin region also causes this kind of ringworm diseases. So for avoiding these kind of diseases, the clothes which you wear in the rainy season should be properly dried and ironed. ठीक है. सिम्टम्स की अगर हम बात करें इसमें, सिम्टम्स में स्केल लीजन्स, scaly dry lesions accompany on skin, nails and your scalp. The head region is in the scalp. So these kind of scaly dry lesions are there as a symptom of the disease, which are accompanied with itching. अब जब इचिंग होती है तो हम वहाँ पे हैंड्स यूज करते हैं. हैंड यूज करने से क्या होता है, वो हमारे नेल्स में आ जाता है फंगस. एंड वेन एवर वी शेयर आर आइटम्स with some other person, then the same disease is transmitted to the other person. So avoid sharing the utensils with such kind of person, or you should be able to avoid the direct contact with the person suffering from ringworm, because you can see it is easy also transmittable through the skin and your nails. तो इसलिए कॉन्टैक्ट आपको अवॉइड करना चाहिए फ्रॉम द पर्सन सफरिंग फ्रॉम रिंगवर्म. ठीक है. दूसरी चीज, रिंगवर्म के प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है. इट इज इन द आर्मपिट्स एंड ग्रॉइंस. जहाँ पे भी मॉइस्चर इसको मिलेगा फंगस को, वहाँ पे फंगस विल ग्रो. सो आर्मपिट्स एंड ग्रॉइंस के अराउंड रिंगवर्म की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. सो यू शुड यूज द डस्टिंग पाउडर. जैसे कि कैंडिड डस्टिंग पाउडर आता है, वहाँ से फंगल की ग्रोथ प्रिवेंट होती है. और यहाँ की आर्मपिट्स एंड ग्रॉइंस की हाइजीन काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहनी चाहिए ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ डिजीज टू प्रिवेंट इट्स फर्दर ग्रोथ. ठीक है. सो रिंगवर्म कंप्लीट हो चुका है. फाइनली वी हैव डन ऑल द डिजीजेस विच वर गिवन इन योर एनसीईआरटी, और थोड़े से एक्स्ट्रा भी कर लिए हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ठीक है. अब डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं विच यू शुड फॉलो डेफिनेटली फॉर अ हेल्दी वेलबींग और योर हेल्दी लाइफस्टाइल. पर्सनल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल लेवल पे यू शुड कीप योर पर्सनल हाइजीन, right? And you should have clean drinking water, food and vegetables, so that your diet is maintained, so you are easily able to prevent the diseases. Your immune system is up to date. Your immune system is all right, so that can be useful for preventing the any kind of diseases at your personal level. ठीक है. दूसरी चीज पब्लिक हाइजीन की अगर मैं बात करूँ तो पब्लिक लेवल पे देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस दैट सो दैट वी कैन प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस. सबसे पहले तो एक्सक्रीटा प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए उसका. whatever is running through the drainages and house pipes and our water reservoirs and water tanks, it should be properly disposed. ठीक है. ड्रेनेजेस होती है उनको कवर रखना चाहिए so that the mosquitoes and flies are not breeding anywhere so for transmitting the diseases. ठीक है. और क्या कर सकते हैं इसमें, पब्लिक लेवल पे हमें ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और हर हेल्दी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए, हाइजीनिक मेजर्स को, लाइक टाइम टू टाइम मॉस्किटो डस्टिंग. कुछ मॉस्किटो स्प्रे होता है, वो कॉलोनीज में उसको डस्ट करते हैं. कोरोना टाइम में बहुत यूज़ हुआ था वो.
तो उन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। बाकी अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग प्रिवेंटिव मेथड्स भी होते हैं, जैसे कि एयरबॉर्न डिजीज़ अगर कोई है तो एयरबॉर्न डिजीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस पर्सन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अवॉइड करना चाहिए, लाइक अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया और एनी काइंड ऑफ वायरल डिजीज। तो अगर हम उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेंगे सो इट विल बी इजिली ट्रांसमिटेबल। सो इसलिए ऐसी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, एयरबॉर्न डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें पर्सन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, जैसे कि कुछ डिजीजेज एस्केरियासिस और फिलेरियासिस हैं जो कि ट्रांसमिट होती हैं थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। सो उसके लिए हमें जो ड्रेनेजेस हैं उनको कंटिन्यूसली क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि फ्लाइज वगैरह जब ब्रीड करती हैं इधर उधर तो दे आर गोइंग टू डेफिनेटली इन्फेक्ट योर फूड एंड वाटर। सो उस चीज़ को प्रिवेंट करना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके ड्रेनेज जितने भी रन कर रहे हैं उनको डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए वीकली या पीरियोडिकली। और फील्ड्स में इसको अवॉइड करने के लिए हमें गम्बूसिया फिश को इंट्रोड्यूस करना चाहिए बिकॉज इट फीड्स ऑन मॉस्किटो लार्वा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, विच फिश इज इंट्रोड्यूस इन द फ्राइज फील्ड टू प्रिवेंट मॉस्किटो लार्वा ग्रोथ? गम्बूसिया फिश feeds on mosquito larva. मॉस्किटो लार्वा पे फीड करेगी राइस फील्ड्स के अंदर। इट इज इंट्रोड्यूस इन राइस फील्ड्स। गैम्बूसिया इज इंट्रोड्यूस इन राइस फील्ड्स। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको कि मैं गैम्बूसिया फिश की बात कर रही हूँ। सो दैट इट फीड्स ऑन द मॉस्किटो लार्वा एंड किल देम। तो कंटेमिनेशन यहाँ से प्रिवेंट हो जाएगा हमारा। इन प्रैक्टिसेस को हमें फॉलो करना चाहिए फॉर पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन एज वेल। तो जिससे कि डिजीज़ का प्रिवेंशन काफ़ी हद तक कम हो सके, डिजीज़ का ट्रांसमिशन काफ़ी हद तक कम हो सके, ठीक है। और काफ़ी सारे वैक्सीन बिल्ड हो रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। हमने काफ़ी डिजीज़ के वैक्सीन इन्वेंट कर लिए हैं, लाइक पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया, है ना। तो इससे डिजीज़ का प्रिवेंशन काफ़ी हद तक कम हो, डिजीज़ का ट्रांसमिशन काफ़ी हद तक कम हो रहा है। सो वी आर इजिली एबल टू क्योर दिस काइंड ऑफ डिजीजेज विथ अपकमिंग न्यू वैक्सीन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एक पॉइंट ये हुआ है कि वैक्सीन के यूज से सबसे ज़्यादा, मतलब वर्ल्ड में से ये डिजीज इरेडिकेट कर दी गई, तो वो कौन सी डिजीज है? इट इज स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स इज कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। बाय द यूज ऑफ वैक्सीन। ठीक है, so that's all about your diseases. Now next is the topic of immunity, which we are going to discuss soon.